we all understand what is macroeconomics. Macroeconomics primarily is studying the aggregate, studying the whole, right? So studying the whole का मतलब क्या है? Studying the whole in context to the other aspect which is micro. So earlier we talked about microeconomics. We all understand what is microeconomics. Microeconomics में हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, बट मैक्रोइकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं मैक्रो फैक्टर्स विच आर ग्लोबल फैक्टर्स. सो नेशन एज अ होल, राइट, दैट इज मैक्रो फैक्टर. सो इकोनॉमिक्स में ऑफकोर्स अर्निंग, स्पेंडिंग, अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ, तीनों चीज़ें आती हैं. सो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो नेशन की स्टडी एट द ग्लोबल लेवल पढ़ती है, राइट. सो इसमें हमें करना क्या होता है? इसमें प्राइमरीली हम इन कॉन्ट्रास्ट टू द ग्लोबल पढ़ते हैं अपने आप को. इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या अंडरस्टैंड करना है? हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये अंडरस्टैंड करना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द आस्पेक्ट दैट helps us in calculating the national income of the country. It is the aspect that helps us in understanding the aggregate demand, the total demand, the total supply, the aggregate supply, what we call it, the employment levels. So ये सब macroeconomics हमें बताता है. So please understand one important point which is macroeconomics, right? So while talking about macroeconomics, these are few of the factors जो हमें understand करने हैं. So सबसे पहला है macroeconomics. Macroeconomics में होता क्या है? Macroeconomics में primarily it is that part of economic theory that studies the economy as a whole. Please understand, if we study individualism, if we study the individual factors, like if you remember, you might have studied in your previous classes about microeconomics. Microeconomics क्या बताती है हमें? Microeconomics हमें बताती है the individual factors, price vis-a-vis the demand, price vis-a-vis the supply for one firm, for one individual, right? Now when it talks about the aggregate price, when it talks about the aggregate demand, when it talks about aggregate price and supply, it becomes macroeconomics. That is why here we say it is part of economic theory that studies the economy as a whole. For example, I just talked about we study the macroeconomics in context to national income, aggregate employment, general price level, aggregate consumers, consumption patterns, right? So the investment that happens. So these are all the examples for studying macroeconomics. Main instruments: aggregate demand, aggregate supply. Now in micro, अगर आपको पता हो, याद हो पिछला जब आपने पढ़ा है, तो माइक्रो में हम लोग प्राइस एंड डिमांड पढ़ते थे फॉर द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स. इसमें हम क्या पढ़ते हैं? प्राइस एंड डिमांड फॉर द कंट्री एज अ होल, प्राइस एंड डिमांड फॉर द global factors as a whole, price and demand for the complete world as a whole, right? So इसमें हम सबका, पूरे कंट्री का एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, राइट? सो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब आपने एक्सप्लेन करना है तो ये चारों फैक्टर्स, चारों पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंटली आने चाहिए. सबसे पहला क्या है कि मैक्रो होता क्या है, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल्स, मेन कंपोनेंट्स इसके एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन भी दूँ ना आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वो यही होगी दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी. It does not, I am once again saying it does not tell you about anything about individual factors. It only tells you about the aggregation of factors. That is why we call it theory of income and theory of employment, right? Having said that, what is the structure of macroeconomy? Macroeconomy का structure जो है वो इन factors पे dependent है. सबसे पहले structure किसको बोलते हैं? Structure का मतलब है स्टडी ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. हमने बोला ना एग्रीगेट लेवल पे. सो एग्रीगेट लेवल पे हम किन किन सेक्टर्स को स्टडी करते हैं? फर्स्ट, द प्रोड्यूसर सेक्टर. प्रोड्यूसर कौन होता है? वो जो मैन्युफैक्चर करता है चीज़ें. क्या एक प्रोड्यूसर को हम स्टडी करते हैं? नो, वी स्टडी द कंप्लीट कम्युनिटी एज अ होल, राइट? वी मे स्टडी वन फर्म बट दैट कम्स अंडर microeconomics. When we study the economy as a whole, we say our IT industry is booming. So IT industry does not mean one company or two company or a group of companies. It means complete IT industry, बड़े छोटे सारे players. So producer sector engage in the production of goods and services. So he is the one aspect of macroeconomics. सबसे important aspect producer होता है. जब तक producer चीज़ें manufacture नहीं करेगा, तब तक
कोई भी उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड, आप और हम, हमारा मेन पर्पस क्या है, हम क्या सप्लाई करते हैं, हम किसी भी प्रोड्यूसर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करते हैं। आपके मेरे पास लैंड लेबर है, ठीक है, आपके मेरे पास कैपिटल है, और हम सबके पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं। ये हम मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करते हैं। सो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, कंजम्पशन करता है किन गुड्स की, जो गुड्स प्रोड्यूसर बनाता है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसीज लाती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। आपने कई बार सुना होगा कि ये इकोनॉमिक जोन बन गया, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन गए, राइट। सो इन सब का मतलब क्या है, वाई डू वी नीड सच इकोनॉमिक जोन्स। द पर्पज इज, ये जितने भी इकोनॉमिक जोन्स बने हैं ना, ये सब जोन्स गवर्नमेंट ने हेल्प की है, गवर्नमेंट ने इन जोन्स में सब्सिडीज़ दी हैं। आपको आपके आसपास बहुत सारे ऐसे सिटीज़ होंगे जहाँ पे ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली हेल्प की है, टैक्सेशन में हेल्प की है, टैक्स हॉलीडेज देती है गवर्नमेंट, सब्सिडीज़ देती है। आजकल गवर्नमेंट का एक बड़ा चल रहा है जिसमें अगर आप सोलर पैनल्स लगाओगे तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज़ देगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदोगे तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज़ देगी। सो इसी तरह अगर आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री लगाते हो जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, तब भी आपको सब्सिडीज़ मिलती हैं, राइट। सो टैक्सेशन, सब्सिडीज़। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो ग्लोबल एस्पेक्ट। आपको याद है जब हमने मैक्रो पढ़ा, द वेरी फर्स्ट पेज आई टॉक्ड अबाउट इज द macroeconomics, whereby I talked about nation as a whole, global। so हम लोगों ने ग्लोबल की बात की है, कंप्लीट नेशन की बात की है, राइट। सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें क्या हेल्प करता है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में हेल्प करता है। हम सब चीज़ें खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोई भी कंट्री अपने आप में इतना सक्षम नहीं है कि वो सब चीज़ें खुद प्रोड्यूस करे। तो हमें क्या करना है, हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की ज़रूरत पड़ती है। इवन उन लोगों को भी हमारी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हम लोग सॉफ्टवेयर, वी आर दी लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। टू गिव यू अ फीडबैक, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम लोग बनाते हैं, उनके फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स, राइट। सो पूरा दबदबा है अपना इंडिया का यहाँ पे, राइट। सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली एंगेज्ड इन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, सो इट इज़ एंगेज्ड इन द एक्टिविटी ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग। आपके पास उतने फंड्स नहीं होते कि आप एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाओ, अच्छा सा प्रोडक्शन करो, नंबर ऑफ लेबरर्स एम्प्लॉय करो और सैलरीड वर्कर्स एम्प्लॉय करो। सो यू नीड फंड्स। ये फंड्स आपको कौन देता है, सी ये फंड्स अलग अलग सिस्टम से हमारे पास आते हैं। कुछ हम लोन्स में लेते हैं, कुछ हम बोरो करते हैं। बोरो हम अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से एंड सच अदर पीपल, उनसे हम बोरो कर सकते हैं। सो हम उनको एक हिस्सा, शेयर दे देते हैं, राइट। अदर फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, देयर आर मनी लैंडर्स हु गिव द लोन्स, देन देयर आर आजकल वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए हैं, देन बैंक्स हो गए हैं। सो ये सब फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जो फाइनेंशियल सिस्टम को बनाते हैं। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंगेज करते हैं हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर के लोगों को, जो बोरोइंग और लैंडिंग में हमें हेल्प करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज स्कोप। स्ट्रक्चर के बाद स्कोप आता है। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, ये हमारे चैप्टर्स के नाम है, अगर आप एक्चुअल में देखोगे ना, यही हमारे चैप्टर्स हैं कंप्लीट बुक में। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई टॉक टू यू अबाउट इनकम। सो जीडीपी हमें इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बनाते हैं विद इन आवर बाउंड्रीज, राइट। सो दैट इज जीडीपी। हम लोग इसको आगे फर्दर वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है। सो जीडीपी प्लस एनएफआईए को हम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। द थर्ड इज डिमांड एंड सप्लाई। नाउ in the third slide we talked about aggregate demand and aggregate supply. So ये जो demand and supply की बात कर रहा है, ये aggregate demand और aggregate supply की बात कर रहा है. It is not talking about individual demand and individual supply. Consumption,
हम लोग कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर करते हैं। हमने देखा ना हाउस होल्ड्स, अभी लास्ट स्लाइड में जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, सो हमने उसमें देखा हाउस होल्ड्स की बात की है। हाउस होल्ड्स बेसिकली करते क्या हैं? हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं। क्या प्रोड्यूसर कंज्यूम नहीं करता? प्रोड्यूसर भी कंज्यूम करता है। प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट गुड्स कंज्यूम करता है, राइट। सो प्रोड्यूसर भी कंज्यूम करता है, राइट। सो कंजम्पशन में हम ये सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे कि टोटल इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम हो रहा है, टोटल इनकम का कितना पार्ट सेव हो रहा है, दैट इज कंजम्पशन। देन इट इज इन्वेस्टमेंट। आप जिस चीज़ को सेव करते हो, आप जिस चीज़ को अर्न करते हो, उसमें से कंज्यूम हो गया इज़ वन पोर्शन। कुछ ऐसा भी पार्ट है जो सेव कर रहे हो आप, उस सेव को आप करते क्यों हो? फॉर योर फ्यूचर नीड्स, फॉर योर फ्यूचर एक्सपेंसेस। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड वन पॉइंट ऑफ टाइम, उस फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए जो आपने सेव किया है उसमें से कुछ पोर्शन को आप इन्वेस्ट करोगे, सो दैट फ्यूचर में आपके पास अगर ज़रूरत है तो वो इन्वेस्टमेंट में से रिटर्न्स आ पाएँ, राइट। सो यू विल बी एबल टू जनरेट द रिटर्न्स आउट ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आप लोगों ने पीछे कुछ सालों में आपने सुना होगा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है, बहुत सारी फिगर्स आती हैं, ठीक है। नॉट ओनली ऑन द इंडियन, इन द इंडियन पर्सपेक्टिव, बट बाकी कंट्रीज़ की भी, राइट। गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज़ करनी पड़ती है। जैसे कोविड में था, तो गवर्नमेंट दो तरह से अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज़ कर सकती है, या तो सोशल सेक्टर्स में कर दे, सो फ्री रोटी, अनाज, कनक ये सब कुछ दे दे। सेकेंड, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे कैपिटल गुड्स में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है वो कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बिल्डिंग्स बनाए जो फ्यूचर में उसको और रेवेन्यू जनरेट करके देंगी। सो गवर्नमेंट भी स्पेंड करती है। इट नीड्स टू बी स्टडीड इन, it is to be studied in macroeconomic perspective. The last scope that we are going to talk about the macroeconomics is net exports. Net exports क्या होता है? Net exports का मतलब है exports minus imports. Now exports क्या होती हैं? जब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरर सामान बना के बाहर भेजेगा, we call it export. जब बाहर से मैन्युफैक्चरर बना के हमारे यहाँ भेजेगा, वी कॉल इट इम्पोर्ट्स। नेट डिफरेंस, जब हम यहाँ से सामान भेजेंगे तो हमें इनकम होगी, जब हम यहाँ से यहाँ पे सामान मंगवाएंगे, यानी कि हम इंपोर्ट करेंगे, तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। सो पेमेंट टू अब्रॉड एंड पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सो हमारे इकोनॉमिक्स में ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स लास्ट टॉपिक आता है आपकी बुक का, विच स्टेट्स कि आपकी इकोनॉमिक्स में, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में अल्टीमेटली पैसा बचा कितना, सरप्लस है कुछ या डेफिसिट आया, राइट। सो फॉरेन एक्सचेंज अर्न की कि नहीं की। सो ये हमारे इस टॉपिक का स्कोप है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइम स्कोप है, विच सेज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट टॉक्स अबाउट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, demand and supply, it talks about consumption, it talks about investment, the government spending, net exports.